friends, I am George Macon and welcome to JJ's classroom. Today in this lecture I am going to discuss with you derive an expression for amount of solute unextracted after n number of operations. But before that, in my last two videos I discussed with you the law of distribution, that is D is equal to the concentration of solute in organic phase to aqueous phase. Then in second lecture we proved that for a given volume of extracting liquid, if practical is done in a several installment, then extraction is more complete compared with the single operation. Now in today's lecture, here we are going to find out the value of a solute that remain unextracted after n number of operations. In last video we find out the value or the amount of solute that is extracted. Don't confuse between the amount of solute extracted and unextracted. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, the amount of solute that is extracted with the help of extracting liquid, वो वैल्यू हमने फाइंड की। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, the amount of solute that still remain in the aqueous phase, or we can say that the amount of solute remain unextracted in which it is already present or that is dissolved. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे that let us consider m gram, small m gram of solute is dissolved in V ml of original solution. That is point number 1. In point number 2, it is mixed with small v ml of extracting liquid. Third point, small m1 gram is amount of solute remain unextracted. So these are the 3 points which are important to find out the answer of our question, or we can say that derive the equation. Point number 1, that is the small m gram of solute that is dissolved in capital V ml of the original solution. That means n gram is dissolved in V ml of the solution. Then it is mixed with small v ml of the extracting liquid. So that after the practical, how much amount of the solute is still remain unextracted? That is given by the symbol, that is m1. Small m1 gram of solute is still remain unextracted. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, small m1 ग्राम amount of solute remain unextracted. अगर ये क्वेश्चन हो रहा है आपको कि जो भी solute unextracted है वो कहाँ पे होगा, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन में होगा या फिर वो एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड में होगा, तो ये सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके पास केरोसिन है, ठीक है, और केरोसिन में अगर मैंने बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया होगा, ठीक है, और मैं वाटर की मदद से उस बेंजोइक एसिड को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो केरोसिन है वो केरोसिन मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज VmL। और मैं जो बेंजोइक एसिड उसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, मेरा m ग्राम। ओके, अभी मुझे ढूंढना क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट रिमेन अनएक्सट्रैक्टेड। तो हमने वाटर की मदद से, तो अभी वाटर मेरा क्या हो गया, दैट बिकम्स माय एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड, दैट इज स्मॉल VmL। वाटर क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या ढूंढना है, कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है वो नहीं ढूंढना, मुझे क्या ढूंढना है, कितना एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया है, अनएक्सट्रैक्टेड। तो वो कहां पे होगा, वो वाटर में होगा? जी नहीं, वाटर में क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है।
कहां पे बचा होगा, जहां पे मैंने बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया हुआ था, मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड is present in a original solution is present in that solution in which it is dissolved। जहां पे हमें सॉल्यूट डिसॉल्व करके दिया गया है वहीं से हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड, ये वैल्यू हमें वहां से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की जरूरत पड़ेगी। सो मैं लिख लेता हूँ, पहले लेक्चर में बात की थी, दूसरे लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। According to the law of distribution, K is the distribution coefficient, K is equal to that is the ratio of concentration। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था ऑर्गेनिक बाय एक्यूएस, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे concentration of solute that is unextracted। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसे, unextracted divided by concentration of solute extracted। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी आपको पता है मेरे जो लेक्चर नंबर 2 था वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको पता ही है कि कॉन्सेंट्रेशन की जब वैल्यू होती है, कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, तो हमें वहां पे क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन यानी ग्राम पर एमएल, बस हमें ये वैल्यू ढूंढ के वहां पे लिखनी है। ठीक है, तो फिर से मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हमारा जो ग्लासवेयर है आपको याद होगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल हम जिस ग्लासवेयर में करते हैं उसका नाम है सेपरेटिंग फनेल। यहाँ पे मैं फिर से एक सेपरेटिंग फनेल ले रहा हूं। जब भी आप कोई थियरी किसी डायग्राम की मदद से अगर उसे याद रखना चाहोगे तो वो आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, सेपरेटिंग फनेल में यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेपरेटिंग फनेल में मैंने लिया हुआ यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन है मेरे पास, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया गया हमें, वॉल्यूम इज कैपिटल VmL, यहां से मिल जाएगा VmL ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व हियर, वो भी दिया है हमें, m ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व। यहां से मैं लिख लेता हूं m ग्राम। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो जाएगा m बाय कैपिटल V, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या किया उसके साथ, the solution is mixed with small v ml of extracting liquid। तो यहाँ पे ये मेरा बन गया extracting liquid। ठीक है, how much ml is there, that is small v ml, small v ml of extracting liquid is mixed। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमारा था m1 ग्राम ऑफ अमाउंट इज रिमेन अनएक्सट्रैक्टेड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि m1 की वैल्यू कहां पे लिखनी चाहिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन में या फिर एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड में। मैंने अभी आपको बताया था ये हमारा क्या है m1, ये बेंजोइक एसिड है हमारा। ओके, ये अनएक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है, यानी कि ये कहां पे होगा, और जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां पे या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में। तो हमारा जो भी वॉल्यूम है जो अनएक्सट्रैक्ट, जो अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया है, वो कहां पे मिलेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में मिलेगा। यहाँ भी वो बाकी रहा है, अभी तक उसे हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज m1 ग्राम, दैट इज अनएक्सट्रैक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, m1 ग्राम इज अनएक्सट्रैक्टेड। ठीक है, दैट इज इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन ये होगा, अगर m ग्राम डिसॉल्व करके दिया हुआ है, m1 ग्राम एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, then how much amount of solute is extracted by the extracting liquid, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, m minus m1। ये वैल्यू क्या हो गई, the amount of solute is extracted by the extracting liquid, वो हम यहां पे लिख देंगे m minus m1 ग्राम। ये वैल्यू क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिंग। द ग्राम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूट। अब पूरी सेपरेटिंग फनेल आपके पास तैयार हो चुके हैं, और इसी की मदद से यूटिलाइजिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन K इज इक्वल टू C ऑन एक्सट्रैक्टेड बाय एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। पहले
The value of concentration of solute unextracted. Okay, how much gram of solute remain unextracted? That is m1 gram. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m1, that is gram. Okay, in how much ml? That is in capital VML. यहाँ पे यहाँ पे बन जाएगा capital VML. यहाँ पे ध्यान पे रखना है हमें, कैपिटल VML और स्मॉल VML में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर ये दो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी तो पूरा जो लास्ट में इक्वेशन है उससे आप डिराइव नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 बाई कैपिटल VML. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड कितना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज m माइनस m1. कितना एक्सट्रैक्ट हो चुका है लिखूंगा मैं यहाँ पे m माइनस m1. ओके, हाउ मच ml, दैट इज स्मॉल VML. यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल VML. तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. अगर यहाँ तक पता चल रहा है कैसे हमने वैल्यूज लिखे, तो इसके बाद सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, उसे सिर्फ अरेंज करना है. अगर इसे ठीक से हम अरेंज कर देंगे तो हमें हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगा. देखते हैं कैसे इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे. इसे निकालता हूं मैं अभी. देखिए, पहले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मेरे साथ बने रहिएगा. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि फिर ये जो है दैट इज m माइनस m1 बाई स्मॉल v. ये लिखते वक्त ध्यान रखिएगा स्मॉल v की जगह पे कैपिटल v ना हो जाए. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ऊपर नॉमिनेटर में कौन है, m1 बाई कैपिटल v. ठीक है, अभी हम इसे सिंपल मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा. ये m माइनस m1 है. ओके, डिनोमिनेटर में v, तो इसे मैं ब्रैकेट को अभी ओपन कर रहा हूं तो मुझे कुछ इस तरह से मिल सकता है m बाई v, m1 बाई v दैट इज इक्वल टू m1 बाई कैपिटल v. पहले मैंने क्या किया है, दोनों को m माइनस m1 को मैंने अलग से लिख लिया है. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को अभी मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ, इसे दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा k m बाई स्मॉल v, k m1 बाई स्मॉल v दैट इज इक्वल टू m1 बाई कैपिटल v. ठीक है, अभी कुछ आपको भी समझ में आने लगा होगा कि आगे का स्टेप क्या हो सकता है. यहाँ पे m1 दोनों कॉमन है, मैं दोनों को एक तरफ लिख रहा हूँ. ये माइनस टर्म है, अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो फिर मुझे यहाँ पे दूसरा जो मेरा इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होगा. देखिए ये इक्वेशन इस तरफ जा रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, k m बाई स्मॉल v दैट इज इक्वल टू, दैट इज k m1 बाई, पहले हमें ये लिखना है m1 बाई कैपिटल V. पहले इसे क्यों लिखना है कि ये टर्म हम यहाँ से इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये अपनी जगह पर ये राइट हैंड साइड के, इसलिए पहले वो टर्म आएगी. उसके बाद हो जाएगा प्लस k m1 बाई स्मॉल v. ठीक है, अभी m1 कॉमन है, मैं उसे एक तरफ निकाल दे रहा हूं. सॉरी, m1 जो हमारी कॉमन टर्म है उसे मैं ले रहा हूं पहले. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, k m बाई v दैट इज इक्वल टू, m1 इज कॉमन हियर, m1. तो देखिए यहाँ से अगर m1 को निकालेंगे आप तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, 1 बाई कैपिटल. ठीक है, प्लस देख लीजिएगा यहाँ पे सेम कैपिटल V स्मॉल v, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ से m1 को मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा अभी, k बाई स्मॉल v. दैट इज योर इक्वेशन, k m बाई स्मॉल v दैट इज इक्वल टू m1 1 बाई v प्लस k बाई v. ओके, द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट step of our equation that is equal to v. Okay, I am going to move that m1 from right hand side to left hand side, and that value k by v. Okay, I put the value from left hand side to the right hand side. कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो पूरा रेशियो मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे ले रहा हूँ वो पूरा रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा.
यहाँ पे m ऊपर है, m1 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर पर, ठीक है। वो k बाई v इस तरफ मैं ला रहा हूं तो वो रेशियो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा v बाई k, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे ही लिख लेंगे हम 1 बाई v प्लस k बाई स्मॉल v, ठीक है। इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ k विद बोथ द टर्म, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, मुझे मिल जाएगा m बाई m1 दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ बचेगा हमारे पास v, उसे मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं 1 बाई k कैपिटल V, ठीक है, प्लस अभी k बाई v है यहाँ पे हमारे पास, और k के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कैंसल आउट इस तरह से, तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे 1 बाई स्मॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसे मैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए ये यहां पर चला जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह, मुझे क्या मिल जाएगा, m बाई m1 दैट इज इक्वल टू v प्लस k कैपिटल V डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई k v इंटू v, और ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल, तो ये यहां हो जाएगा स्मॉल, देखिए फिर ये स्मॉल v कैंसल आउट, ठीक है, उसे यहां से निकाल देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, तो भी मेरे पास ये इक्वेशन ऐसे मिलेगा, m बाई m1 इज इक्वल टू v प्लस k कैपिटल V डिवाइडेड बाय k कैपिटल V। यहाँ पे ये खास हमें ध्यान रखना होगा, कैपिटल V और स्मॉल v में इंटरचेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन अनएक्सपेक्टेड, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये जो पूरा रेशियो है इसे रिवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, m1 बाई m, ये रेशियो भी पूरा रिवर्स हो जाएगा, kv बाई kv प्लस v, इसे आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ m1 इज इक्वल टू m को मैं ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये डिनोमिनेटर में से क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हमारा हाफ, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है वो हाफ तक यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन अनएक्सपेक्टेड आफ्टर सिंगल ऑपरेशन, एक का मतलब क्या है, सिंगल ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन इज इक्वल टू m k v बाई k v प्लस v। अगर यही प्रैक्टिकल मुझे दोबारा परफॉर्म करना है, सिंगल ऑपरेशन की जगह मुझे दूसरी बार परफॉर्म करना है, तो ये पूरा काम है मुझे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट की दे रहा हूं, लेकिन पहले पूरा समझ लेते हैं कि अगर मुझे यही इक्वेशन फिर से डिराइव करना है दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो वो जो पूरा सेपरेटिंग फ्रेंड है उसमें कहां पे चेंज होगा और कैसे हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के से लेकर यहां तक पहुंच सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं फिर से सेपरेटिंग फ्रेंड। ठीक है, अभी क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम था कैपिटल VML, ओके, ये हमारा एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड है स्मॉल VML था। प्रैक्टिकल दोबारा मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो यहाँ पे अभी जो स्मॉल m ग्राम डिसॉल्व करके दिया हुआ था उसकी जगह पे अभी क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे हो जाएगा m1। क्यों m1 हो जाएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आपने शुरू किया था तो आपके पास जो सॉल्यूट दिया हुआ था डिसॉल्व करके, उसका अमाउंट कितना दिया था आपको, m ग्राम, उतना अमाउंट था, ठीक है। प्रैक्टिकल एक स्टेप पूरा करने के बाद कितना अमाउंट अभी भी ओरिजिनल सॉल्यूशन में अनएक्सपेक्टेड रहा है, उसकी वैल्यू थी m1। यानी कि अब दूसरी बार जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो, तो जो भी सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा वो कौन सी क्वांटिटी में से होगा, m में से होगा, जी नहीं, वो कहां से होगा, जितना सॉल्यूट आपका बाकी वहां पे रहा है उसी में से होगा। तो कितना अमाउंट बाकी रहा था हमारा, m1, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या हो गया, m1 हो गया, ओके। और दूसरी बार प्रैक्टिकल करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे m2 ग्राम, दैट मीन्स
M1 is now become my original amount of the solid for the second part. दूसरे पार्ट के लिए M1 जो है वो मेरा ओरिजिनल वेट बन जाएगा, amount of the solid that is present in the original solution. अब इसमें से कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा M1 माइनस M2. ठीक है, M2 क्या है? M2 है amount of the solute that is still remain unextracted after second practical. दूसरी बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद अभी भी थोड़ा अमाउंट जो सॉलिड का है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया है, उसको मैंने कौन सा सिंबल दे दिया है? M2 दे दिया है. दैट मीन्स अभी जब मैं पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो किसके लिए होगा? M1 के लिए जी नहीं, वो इक्वेशन हम किसके लिए लिखेंगे? M2 के लिए लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अभी मैं शॉर्ट की दे रहा हूं आपको. जहां पे M है वहां पे M1 हो जाएगा और जहां पे M1 है वहां पे M2 हो जाएगा. तो वो जो रेशियो मैंने लिखा था इस तरह से K इज इक्वल टू M1 की जगह पर मुझे क्या लिखना है? M2. तो क्या हो जाएगा? M2 बाई V डिवाइडेड बाई, फिर हमने क्या लिखा था वहां पे? M माइनस M1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2. M की जगह पर M1 है, M1 तो M2 है, दैट इज डिवाइडेड बाय स्मॉल. फिर अगर इसे फिर से हम पूरा स्टेप अगर करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा? देखिए 1 की जगह पर 2 है तो यहाँ पे M की जगह पर क्या हो जाएगा? M1. तो मेरा जो दूसरा, जब मैं ये प्रैक्टिकल अगर दूसरी बार में परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे द अमाउंट ऑफ सॉलिड अनएक्सट्रैक्टेड M2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? M2 is equal to M1 Kv divided by Kv plus small v. ओके, ये पूरा काम दूसरी बार करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, हमने एक बार समझा दिया है, फिर से इसे हम ऐसे लिखना जरूरी है. जब एग्जाम ओरिएंटेड, जब सप्लीमेंट्री में आप 5 मार्क्स वेटेज के लिए क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हैं तो फिर ये दूसरी बार हमें दिखाना पड़ेगा. दूसरी बार ये K की वैल्यू लिखने के बाद सीधा हम ये इक्वेशन लिखेंगे therefore करके, therefore M2 is equal to M1 Kv by Kv plus V. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑलरेडी हमारे पास M1 की वैल्यू थी, हमने पहले स्टेप में M1 की वैल्यू जो है डिराइव की थी. M1 is equal to M Kv by Kv plus V. ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हमें मिला था इस तरह से. ये इक्वेशन हमने फिर से लिया है M2 is equal to M1 Kv by Kv plus V. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. सो इन नेक्स्ट स्टेप what happened? In next step, put the value of M1 okay in equation number 2. When you put the value of equation number 1 in equation number 2, what happened is like this. Look at it. That is M2 is equal to, now instead of M1, that is your equation, that is M Kv by Kv plus V, and that is still in your equation, that portion still in your original equation, that is Kv plus V. So ये क्या बन जाएगा? M2 is equal to M Kv by Kv plus V square. That is your equation number 3. ठीक है, देखिए अभी क्या हो जाएगा? एक और क्वेश्चन, अगर यही प्रैक्टिकल में तीसरी बार परफॉर्म कर रहा हूं, देखिए तीसरी बार क्या होगा? जो M1 है, now 1 becomes 2, 2 becomes 3, यहाँ 1 becomes 2, 2 becomes 3, यहाँ पे क्या चेंज होगा? 2 becomes 3, remain as such. That square, now that square becomes 3. That means if I done the practical third time, the amount of solute remain unextracted, that is M3. M3 is equal to M Kv by Kv plus V raised to 3. 4 टाइम करेंगे इस प्रैक्टिकल को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4. यहाँ पर 4. हमारा क्वेश्चन क्या था? Derive the equation or the relation for the derive an expression for the amount of solute unextracted after n number of operation.
n number of operations, not 4 times or 5 times. So your 4 is replaced by n. So you see that number is also replaced by n. So that is your final equation. That equation is very useful for solving the numericals. Okay, from that unit, the unit of solvent extraction in SP University or in other universities, the example, the weightage of example is 4 marks. Okay, with the help of this equation, Mn is equal to m Kv by Kv plus V raised to n. Now, what are the values here? Mn means the amount of solute unextracted after n number of operations. That is called Mn. M is the original amount of solute that is dissolved in the solution. That is the amount of solute dissolved. K is a distribution ratio. कैपिटल V, देखिए यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि आपको वैल्यू दी गई होगी, वॉल्यूम दिया गया होगा, लेकिन कौन सा वॉल्यूम कहाँ पे लिखना है वो कैसे पता चलेगा? एक सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आपको सॉल्यूट जहां पे डिसॉल्व करके दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल ऐसा दिया है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, इफ 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज dissolved in 500 ml aqueous solution which is mixed with 50 ml ether. ठीक है, इस तरह से आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, then this 2 gram, that is your M, small m, the amount of solute dissolved in, that is your benzoic acid. Now, what will be the value of a capital V and a small v? Capital V, that means what? The amount of solute dissolved in the solution. So here, your benzoic acid is dissolved in 500 ml of aqueous solution. That means that 500 ml is your capital V. Clear? And the 50 ml of ether, that is your small v. Capital V means the volume of a solution in which the solute is dissolved. Small v, that means the amount of extracting liquid by which you extract the solute from a original solution. So don't confuse between capital V and small v. Okay. N is the number of operations. Here your practical is done in a single step. So that's why for that case n is equal to 1. अगर हमें न्यूमेरिकल में ये बात दी गई है कि प्रैक्टिकल को हमें 50-50 ml के 2 इक्वल पार्ट्स में परफॉर्म करना है, तो n की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी? 2. जितनी बार आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ n, द नंबर ऑफ ऑपरेशन. सिंगल बार है n इज इक्वल टू 1, अगर 2 बार प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो n क्या हो जाएगा? 2. ऐसे ही वाइस वर्सा जितनी बार भी हम प्रैक्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल इंस्टॉलमेंट के साथ n की वैल्यू उस तरह से हम लिखेंगे. सो इस तरह से आपको अभी पता चल गया है कैसे हमें इक्वेशन डिराइव करना है, और इस इक्वेशन की मदद से हमें कैसे न्यूमेरिकल भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, Mn is equal to m Kv by Kv plus V raised to n. That is called amount of solute unextracted. अगर यहाँ से मुझे सीधे ही अगर कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट हुआ है अगर वो वैल्यू ढूंढनी है तो उसका भी एक इक्वेशन हमें दिया गया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड. ओके, दैट इज m minus Mn is equal to m 1 minus Kv by Kv plus raised to n. ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड, ये बन जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, एम डिसॉल्व करके दिया था, इतना डिसॉल्व एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया है, तो एक्सट्रैक्ट कितना हुआ होगा? m minus n. So by with the help of these two equations you can easily find out the value of amount of solute extracted as well as unextracted.
ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे जेजे क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।